So, hello friends. Hopefully, you people have completed the previous work and clear about the points which we had learned in this chapter, chapter number 5, Understanding Elementary Shapes, and in which we had learned how to measure the length of line segments. लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, दैट वी हैड लर्न. एंड देन इन द लास्ट पीरियड वी हैड लर्न अबाउट द एंगल्स. एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. दिखा है तो आपको एक बार रिमाइंड करवा दो पूरे के पूरे पेज. कंपैरिजन ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट वी हैड लर्न. देन आफ्टर वी हैड लर्न अबाउट दिस which one is the accurate method to measure the line segment. The accurate method to measure the line segment is using divider and ruler. Okay. Then we had solved about the 5.1 also. Afterwards we had learned about these angles. This is the very important point. Angles, right and straight. Right angle means if the two lines are intersecting, two rays, not the lines, intersecting exactly in this way, this is called right angle and its measure is 90 degree. क्या measurement आता है? 90 degree. Angle always will be measured in the form of degree. This is the symbol which is known as degree. इसे degree कहते हैं. ठीक है? So this we had already learned, but I am reminding you this is right angle. Then if two rays are intersecting at one point but in the opposite side, then the angle forms over here which is known as 2 times right angle. If we consider it as a right angle, this is also 90 and this is also 90 degree. So दोनों मिला के 90 plus 90 gives us 180 degree. And this angle is known as straight angle. उसे क्या बोलते हैं? Straight angle. And then after we had learned about the complete angle. Complete angle means how to understand it. If this way we get the figure in this way. See, this is called the perpendicular lines. अगर एक दोनों को इस तरह से intersect करती है, this is 90 degree. 90 degree, 90 degree and 90. This is called one revolution, second revolution, third revolution and fourth revolution. When the whole revolution completes, so one revolution, if the part of the revolution completed, then it is 1/4. This part, only single part, one part, 1/4. 2 कंप्लीट होते हैं तो स्ट्रेट एंगल मिलता है और उसको बोलते हैं 1/2. 3 कंप्लीट होते हैं तो उसको बोलते हैं 3/4. और 4 कंप्लीट होते हैं तो होल रिवॉल्यूशन होगा. स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड कंप्लीटेड इट. सो यहाँ पे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए. 4/4 तो 1 रिवॉल्यूशन हो गया और उसे बोलते हैं पूरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल. क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल. और इट मेजर इज 360 डिग्री. उसका मेजर क्या है? 360 डिग्री. तो दिस 3 एंगल्स कॉन्सेप्ट अबाउट द राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल वी हैड लर्न इन द प्रीवियस क्लास. ओके, ये भी हो ही चुका है. जस्ट आई रिवाइज. टुडे वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द टाइप ऑफ एंगल्स. एंगल्स को डिफरेंट टाइप के आते हैं, उस हिसाब से हम आज आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है? फ्रॉम दिस वी हैव लर्न अबाउट द फेसिंग आल्सो. दिस आल्सो वी हैव लर्न नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. सो वो भी हम पढ़ेंगे. आई हैव एक्सप्लेन इट इन द प्रीवियस वीडियो. चलिए, देन आफ्टर वी हैव सॉल्व अबाउट दिस रिवॉल्यूशन. This try this exercise 5.2 also. And today we are going to understand about the angles acute, obtuse and reflex. So first of
एंड कंप्लीट एंगल। ओके, वो आपको दिमाग में रखना है। सो कंपेयर विथ राइट एंगल वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एक्यूट एंगल एंड अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये दोनों जो है वो राइट एंगल के साथ कंपैरिजन करके डिसाइड किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज राइट एंगल? दिस इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है। अभी यहाँ पे जीरो एंगल है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन एक ही एरो लूं तो यहाँ पे 0 डिग्री है, और मैं यहाँ पहुंचू तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। सो 0 मेजरमेंट से लेके 90 मेजरमेंट तक जो भी मेजर्स आते हैं, जो भी मेजर्स we can say that smaller than 90, या तो we can say that between 0 and 90, between 0 and 90 जो भी मेजर है उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे लैडर का एग्जाम्पल दिया गया है। We know that we use ladder every day. So there is a certain angle between this base and the ladder. ये हम बोल सकते हैं कि ये बेस है, कहीं पे भी लेडर लगाई है तो ये उसका बेस है। वो जमीन भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 kinds of angles it forms, 2 तरीके के एंगल यहाँ पे लेडर जो है बनाती है। सपोज ये वॉल है तो वॉल के साथ ये एंगल हो गया, और ये फ्लोर, ये क्या है? फ्लोर है, तो फ्लोर के साथ एंड वॉल के साथ। तो ये जो एंगल बना, अगर हम इस तरह से एंगल कंसीडर करें, ये 2 रे के बीच में, ठीक है, तो ये एंगल आप मेजर करोगे तो उसका 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो मेजर हुआ वो 90 डिग्री से कम हुआ, 0 से 90, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया। 0 to 90, बिटवीन 0 to 90 जो मेजर होता है, ये वाला, ये एंगल, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। वैसे ही अगर मैं यहां से मेजर करूंगी तो ये 90 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और इसका 90 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, तो 90 से बड़ा होगा। ठीक है, ये फिगर कैसे बनेगी आपको दिखाओ, इस तरह से बनेगी। आपको अगर दोनों फिगर में साथ में समझ नहीं आता है तो ये एंगल इस तरह से बनेगा यहाँ पे, और उसका 90 कहाँ आया? यहाँ, क्योंकि 0 जो है यहाँ पे 0, ये 90 हो गया, और ये जो है उस तरह से आया। तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया 90, 0 से 90 के बीच का, ये भी एक्यूट हो गया 0 से 90 के बीच का। तो ये दोनों एंगल क्या बने? एक्यूट एंगल को ले जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द मेजर ऑफ एंगल इज बिटवीन 0 to 90। अगर 90 हो गया तो वो राइट एंगल है, और 0 से ऊपर गया और 90 से कम है तो उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल भी आपकी टेक्स्ट में दिया है, वो हम पढ़े। यहाँ पे एक एल का एग्जाम्पल दिया है जो कि एग्जैक्ट 90 समझाने के लिए आपको कैपिटल लेटर एल ड्रॉ करके यहाँ पे दिया गया है, और आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है एल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और अभी जो मैंने बताया ना आपको कि एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज कैन बी डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग इट विथ राइट एंगल, और वो जो मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ उसको आपकी टेक्स्ट बुक में RA टेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RA, राइट एंगल टेस्टर। मानी if any angle is drawn or measure of angle is given, comparing it with RA tester, RA tester से उसको measure करो। RA tester means what? Right angle tester. Because whenever we decide the given angle is acute or obtuse, we always compare it with the right angle. RA means right angle tester. तो right angle tester से कैपिटल लेटर L को मेजर करने के लिए बोला गया है कि आप टेस्टिंग करो
Is it acute or obtuse? It is exact right angle. Capital L letter forms exact right angle between these two rays. Okay, so what is RA tester? It is right angle tester. और right angle tester की जरूरत क्या पड़ती है? जब भी हमको किसी भी एंगल का नाम देना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है, तो RA tester की हमें जरूरत पड़ती है. यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, यू कैन गो टू इट. चलो, देन आफ्टर ये ट्राई दिस हमें सॉल्व करना है, जिसको क्लॉक के साथ कंपेयर करके डिफरेंट एंगल की बातें की गई है. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने यहाँ पे जो देखा, तो एक्यूट एंगल हमने देखा, फिर यहाँ पे ट्राई में क्या है, क्वेश्चन देख ले पहले एक बार, फिर उसके बाद में क्या है. ओके, अदर नेम्स. ठीक है. ओके, देन आफ्टर we will go with acute and obtuse afterward. First of all, we will solve this triads. According to our planning, also today we have to solve only this triads. Triads में जो भी क्वेश्चन है, the hour hand of clock moves from 12 to 5. 12 to 5 is the revolution hour hand. More than one right angle means RA tester पे ही यहाँ पे काम किया है. Question number 2. What does the angle made by the hour hand of the clock look like when it moves from 5 to 7? 5 to 7 से move होगा, तो is the angle moved more than one right angle? And draw the following and check angle with your RA tester. Following draw करो, ये clock के साथ में RA tester को दिया गया है. Then take 5 different shapes with corners. Name the corners. Examine them with your tester and calculate your results for each case. So that we are going to solve. But according to our style, we will solve it in other page. This only I have shown you from the textbook. Okay, what is that? Okay, so now we are going to solve it with this question number 1 of try this. पेज नंबर ये शायद 93 है मेरे हिसाब से, फिर भी आप देख लेना. दिस इज पेज 93. RA टेस्टर ऑफ एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल की बात ये ट्राई दिस एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1. द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5. मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12. यहाँ पे है 12 पे, यहाँ से वो मूव करती है 1 2 3 4 and 5. 5 तक ये आवर हैंड मूव करता है. ठीक है, यहाँ तक 5 तक. तो क्या होता है, देखिए पूछा क्या गया है कि अगर ये RA टेस्टर के हिसाब से मूव देन वन राइट एंगल, तो राइट एंगल टेस्टर मींस RA टेस्टर बोला जाता है उसको. ठीक है, तो we had learned about the clock lots of time in the previous class. So we know that the distance from one digit to another digit 130 degree. 30, 30, 30, 30, 30. And how many times? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 times हो गई. तो ये कितनी डिग्री हो गया? 150 डिग्री. बराबर है. तो 150 डिग्री मानी मोर देन वन राइट एंगल. सो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल? तो यस इट इज. ये आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है. इस तरह से ड्रॉ कर सको तो वेल एंड गुड है, इफ नॉट देन लीव इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. 2 में क्या क्या गया है देखिए हम. In question number 2, what does the angle made by the hour hand of the clock look like when it moves from 5 to 7? 5 to 7 से वो जब मूव करेगा तो कैसा दिखेगा? तो हमको आवर हैंड ड्रॉ करना है, पहले 5 पे एंड फिर ड्रॉ करना है 7 पे. 5 to 7 इस तरह से हो गया. Is the angle moved more than one right angle? So we think about it. Is it moved 3 steps? No, it moves only 2 steps.
30 plus 40 minus 60 degree. Okay, so here the answer will come no, it is not. It is not more than one right angle. ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर लिखना है. Figures are already given drawn in your textbook. टेक्स्ट बुक में फिगर ड्रॉ करके ही दी गई है. चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट इज गिवन दैट? क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद योर आई टेस्टर. राइट एंगल टेस्टर. कितने राइट एंगल बनाते हैं वो हमें टेस्ट करने हैं. यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देख ले हम. गोइंग फ्रॉम 12 to 2, तो 12 मानी यहाँ पे हो गया, 2 मानी यहाँ पे, तो 1 and 2 ओनली 2 steps it moves. तो आई टेस्टर से क्या लिखेंगे? ड्रॉ द फॉलोइंग, चेक एंगल विद योर आई टेस्टर. सो वी कैन से दैट इट इज लेस देन 1 राइट एंगल. ठीक है, वो या तो एक राइट एंगल कंप्लीट नहीं करता है, वो भी हम लिख सकते हैं. इट डजंट कंप्लीट 1 राइट एंगल. वाई टेस्टर फ्रॉम 6 to 7, 6 to 7 वो तो एक ही स्टेप हो गया. यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, 6 to 7. So it is less than 1 right angle. The same answer will come here also. From 4 to 8, and D and C are together. From 4 to 8, 4 पे यहाँ पे ले लो 4 and 8 यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो वो दिखता है कि it is more than 1 right angle. देखो 1, 2, 3 and 4 steps, so it is more than 1 right angle. Answer C. C में क्या आएगा? It is more than 1 right angle. ठीक है, and then D में हमको दिया है 2 to 5. यहाँ पे फिगर नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी पे मुझे समझाना पड़ेगा आपको. 2 to 5, ये 2 to 5 डी, क्वेश्चन डी मैं बोल रही हूँ, जो कि साथ में ही ले लिया है मैंने. It's my mistake. I didn't enter T over here, and that's why it is here D. From 2 to 5. 2 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. 5 कहाँ पे है? यहाँ पे. 1, 2 and 3. It is exact a right angle. It is D. Answer D क्या आएगा? It is exact a right angle. और 1 right. Is exact 1 right angle. ठीक है, तो this is called RA tester, right angle test. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है. And the question number 4 is also given here. The question number 4, what is given there? Let us see. It is given there कि आप जो है वो फाइव शेप्स लीजिए, डिफरेंट शेप्स. 5 शेप्स लेने हैं और फिर उसे हमें आर टेस्टर से कॉर्नर के नेम भी लेने हैं और आर टेस्टर से चेक करना है. टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स, नेम द कॉर्नर्स. माने मैंने ये 5 शेप्स लिए. दिस इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन एंड रोम्बस. ये स्क्वायर शायद आपको स्क्वायर नहीं दिखता है, लेकिन मैंने जब ड्रॉ किया था अभी मैग्नीफाइंग हो गया. दिस इज स्क्वायर, उसको स्क्वायर ही अज्यूम करो. हो सके तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज स्क्वायर. ठीक है, फॉरगेट दिस फिगर. देन दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल कहते हैं. ये पेंटागन है. क्यों पेंटागन है? 5 साइड्स आर देयर. And this is rhombus. चलिए, now through our
likewise it forms a right angle. So we can say that this is a right angle. ये राइट एंगल टेस्टर पे ही पूरी एक्सरसाइज है. रेक्टेंगल सपोज मैं देखती हूँ पी क्यू आर एस, ले लें हम ये एंगल ले लें. एंगल एस आर क्यू इज ऑल्सो 90 डिग्री. यहाँ पे ये एक रे हो गया, ये एक रे हो गया, दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट करके इट फॉर्म्स एंगल 90 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो राइट एंगल. ठीक है. देन यहाँ पे जाओ x, y, z. If we take this angle y, x, z, तो वो क्या आएगा? अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ये एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया. दोनों के बीच का जो एंगल है it is not equal to 90 degree. So you can write it not a right angle. ठीक है. चलिए पेंटागन. पेंटागन में आप कहीं पे भी जाओ, ये रहा ये एंगल, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे आएगा. इट मूव्स फर्दर, तो ये भी 90 डिग्री नहीं है. तो वी कैन से दैट वी कैन नेम इट ए बी सी डी एंड ई. एंगल EDC is also not equal to 90 degree. So not a right angle. ये भी right angle नहीं है. अभी रोम्बस पे जाए. रोम्बस पे आप कोई भी ले लो, L M N O. कोई भी एंगल ले लीजिए, मैं O ले लेती हूँ. एंगल LON, तो इट इज 90 डिग्री. सो ये हो गया right angle. In this way I have taken these 5 figures, but you people can take according to your own choice. But you people are aware of all these figures, and that's why I have taken the easiest figure to understand for you. So in square, all the angles are right angle. In rectangle, all the angles are right angle. In rhombus, all the angles are right angle. In triangle, no angle is right angle. In this triangle, but if I take the triangle likewise, मैं ऐसा कोई ट्राइंगल लूंगी तो ये एक एंगल उसका राइट एंगल होगा. लेकिन अभी जो फिगर मैंने ली है वहां पे कोई भी राइट एंगल नहीं है. पेंटागन में भी कोई भी राइट एंगल नहीं होगा. Whenever you measure it, how to measure, we will learn in the further session. Okay, so whenever you measure the angle of pentagon also, it is also not a right angle. So this is called right angle tester. Or we had learned about the right angle tester today. And tomorrow means Monday is a holiday due to Janmashtami, and Tuesday I'll post the video again. In that we will learn about the acute, obtuse and reflex angle. Okay, so you just go through your textbook, try to understand this eye tester, and think about more than this 5 steps. Where is the array tester gives us 90 degree right angle. Okay, so Janmashtami is there on Monday, but I am 100% sure that you people will take care of yourself. Use mask and sanitizer. Take away, keep distance from the people. Okay, so celebrate festival, but with full of care of yourself. Take very good care of yourself. Happy Janmashtami. Bye bye.